Hello everyone, welcome to this tutorial. This tutorial was supposed to be an online tutorial via Zoom, but because of my unavailability, I am recording it and I will upload this video and will share the link with all of you. So if you guys have any question in the end of this video, you can either DM me with your question or you can send me an email and we can discuss this. Okay, so since this is a grand tutorial, so we have a lot of things to cover, so maybe I'll not be able to cover it in one video, so I'll try to cover it in parts. So in this video we will be covering we will be covering limits and evaluation of limit, obviously. So most importantly, limits at infinity. So we'll end this limit topic by doing some questions about limits at infinity. Okay, trigonometric limits, I forgot to add it in this PDF, but I'll try to add some questions if I remember while I was doing the evaluation of limits. And then we'll end this tutorial by doing some questions about continuity. Okay, so basically we'll cover limits and continuity in this video. Okay, so we'll start with the limits. What is a limit actually? So mathematically it is a fundamental concept that basically describes the behavior of a function around a particular point. Okay, so for example, if we have a graph of a function, let's say like this, and here we have an input value a around which we want to observe the behavior of our function. Okay, so we will be given with the value, input value a, at which we have to evaluate the limit of the function. So by this value we means we have to observe the behavior of our function around this particular input point a. Okay, so we can see if we move towards a from left side on the x-axis, which is the line of all the values of all input values for the function. So if we move towards a on from left side, my function is moving towards, let's say here some value L exists, so my function is moving towards the point L. Similarly, if I move towards a from right side, my function is again moving towards the same point L. So again, in this case we'll say that limit of this function, which we say that f of x, so limit of the function f of x at point a is equals to L. Okay, and we formally write, so instead of a I have written c here, so formally we write it as like limit x approaches c, f of x is equals to L. So this is the all concepts. So about limit, you'll always mean that we're approaching towards a particular point. Okay, and while we are approaching towards a particular point, my function will be approaching towards some other point. So वो point जो होगा वो उसकी limit value होगी. Okay, so limits के लिए okay, so if L is the limit value of the function at c, so we say that as x approaches c, the value of f of x approaches L, and also the limit L does not depend upon the value of the function at c. For example, if I draw a function here that goes here and we have a gap here, and then function starts moving from here. Okay, so we will observe the value. Let's say we have 0 1 2 1 2 and so on. So if this is a function y is equals to f of x, so now to observe around 0, if I start moving towards 0 from left side, my function is moving towards 2. Okay, so my function is defined at 0, but the value of this function at 0 is 0 but not 2. But if I move towards 0 from left side, my functional value, my function is moving towards 2. So the left limit which we denote as
limit x approaches 0 from left side, f of x is given as 2. And similarly, if I start moving towards 0 from right side, my function is moving towards 0. So limit x approaches 0 from right side, f of x gives us 0. So left limit is 2 in this case and right limit is 0 in this case. Okay, so I was supposed to tell कि अगर फंक्शन डिफाइन ना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बट लिमिट स्टिल एग्जिस्ट करती है, बट मिस्टेकनली आई हैव टेल्ड यू अबाउट लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स. बट एनीवेज दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू नो. सो अगर इस तरह का फंक्शन होगा ग्राफिकली, सो यू नो कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आपका फंक्शन किसी और पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच करें तो आपका फंक्शन किसी और पॉइंट को अप्रोच कर रहा है. तो यू हैव टू डिफरेंट लिमिट वैल्यूज़ एट द सेम पॉइंट. तो हमारे पास लेफ्ट लिमिट कुछ और है, राइट लिमिट कुछ और है. तो लिमिट्स में हमारे पास दो तरह की लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट लिमिट होती है और राइट लिमिट होती है. और अगर हम कहते हैं किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स कि उसका मतलब ये होना चाहिए कि उस पॉइंट पे लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए. यानी कि अगर आप अपने ज़ीरो को राइट साइड से अप्रोच करें या लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें, दोनों साइड पे आपका फंक्शन जो है वो सेम पॉइंट पे अप्रोच करना चाहिए. तो उस केस में वी से दैट लिमिट डज एग्जिस्ट. ओके, ये जो लाइन थी कि लिमिट एल डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी. सो फॉर एग्जांपल मैं अगेन कोई फंक्शन ड्रॉ करता हूँ. ओके, सो इफ आई ड्रॉ फंक्शन, लेट्स से इट इज़ defined like this and then we have a gap here and then moves here. Okay, let's say this gap is at 5 and the input is 2. Okay, so if you see here, if I move towards 2 from left side, my function is moving towards 5. If I move towards 2 from right side, my function is still moving towards right. So left limit is equals to 5, right limit is equals to 5. So limit of x approaches 2 of f of x इज इक्वल टू 5. तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट इस केस में माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 2. यानी कि एफ ऑफ 2 अगर मैं डायरेक्टली 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इट इज़ नॉट डिफाइंड ग्राफिकली. यू सी दैट कि वी हैव एन ओपन सर्कल, तो 2 पे उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है. यू सी, तो लिमिट स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए इट डज नॉट नेसेसरी कि लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड भी हो. ओके, सो देन वी हैव वन साइड लिमिट्स दैट वी राइट a small negative sign on the top of the value if we are approaching towards c from left side, and if we are approaching towards c from right side तो we write this plus sign इस पॉइंट पे उसी के ऊपर. एंड अगेन अभी मैंने आपको बता दिए कि इफ़ लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि द लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल्स टू द राइट लिमिट. दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो इस फंक्शन की लिमिट भी वही होगी जो उसकी लेफ्ट और राइट की लिमिट आ रही है. ओके, देन वी हैव इन्फिनिट लिमिट्स. इन्फिनिट लिमिट्स मीन्स कि आपके आंसर जो है वो इन्फिनिट आ रहा है. सो इफ़ यू आर एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर पॉइंट, आपका आंसर जो है वो आपका फंक्शन जो है वो विदाउट बाउंड जो है वो ग्रो करना शुरू कर गया. फॉर एग्जांपल इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x यूजिंग एनी ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर, डेस्मोस यूज़ कर लें अब. तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी कि एज माई एक्स अप्रोचेस 0, माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को. तो जैसे जैसे फंक्शन 0 को अप्रोच करता है हमारा जो फंक्शन है, जैसे जैसे x0 को अप्रोच करता है हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड गोज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. तो जैसे जैसे मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, मेरा ग्राफ जो है यहाँ से ऊपर को शूट कर रहा है और वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है. तो इट मीन्स एट 0 माई फंक्शन इज़ द लिमिट ऑफ माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट 0 इज़ इन्फिनिटी. ओके, सो हम कहते हैं कि हमारी इन्फिनिट लिमिट्स हैं अगर प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी हमारी लिमिट किसी भी पॉइंट के लिए. एंड देन लिमिट्स एट इन्फिनिटी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिट लिमिट्स. ओके, सो लिमिट एट इन्फिनिटी मीन्स कि आप अपनी लिमिट ही इन्फिनिटी पे वैल्यूएट कर रहे हैं. इफ़ यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम प्री कैलकुलस जहाँ पे वी स्टडीड एंड बिहेवियर, तो जहाँ पे हमने एंड बिहेवियर उसका देखा था. तो एंड बिहेवियर में हम क्या करते थे, कोई भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते
तो हम उस फंक्शन के लिए इफ़ अ ग्राफ कम्स फ्रॉम हेयर एंड देन गोज़ हेयर लाइक दिस, आई डोंट नो, कोई भी ग्राफ है, ओके, तो हम क्या करते थे कि हम उसमें एंड बिहेवियर चेक करने के लिए क्या करते थे कि हम चेक करते थे कि इफ़ एक्स अप्रोचेज टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी तो मेरा वाई इस केस में इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ऑल्सो प्लस इन्फिनिटी, और इफ़ माई एक्स अप्रोचेज टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी माई वाई इज़ अप्रोचेज टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, स्टिल प्लस इन्फिनिटी, सॉरी, बिकॉज इट गोज लाइक दिस, ऊपर से आ रहा है तो इट्स प्लस इन्फिनिटी। तो हमारा एंड बिहेवियर कुछ इस तरह से होता था। तो एंड बिहेवियर इज एक्चुअली फाइंडिंग द लिमिट एट इन्फिनिटी किसी भी फंक्शन की। तो हमारे एंड बिहेवियर वाले केस में ओके, अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता कि इफ़ दिस ग्राफ इज़ समथिंग इट हैज़ एन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो इस पॉइंट के जो है वो पैरेलल हो जाएगा। ओके, सॉरी फॉर दिस। सो इफ़ आई लेट्स से अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन गए तो मेरा जो ग्राफ है इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू दिस वन, और यहाँ से इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। ओके, तो इस केस में वी विल राइट, सो इफ़ दिस पॉइंट इज़ एट 5, तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन माई एक्स अप्रोचेज टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, जब मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्स जा रहा है तो मेरा वाई जो है इट अप्रोचेज टुवर्ड्स 5। तो यू सी इस वाले केस में अगर हम इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करें तो वी आर हैविंग सम फाइनाइट नंबर, ओके। तो लिमिट सेट इन्फिनिटी मीन्स कि आप फंक्शन की लिमिट सेट इन्फिनिटी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आपकी लिमिट जो आप पर्टिकुलर सी पॉइंट था जिस पे लिमिट वैल्यूएट कर रहे थे वो इट सेल्फ इन्फिनिटी है। तो इन अदर वर्ड्स यू आर ऑब्जर्विंग द एंड बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। ओके, सो अभी हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। simple examples हैं basically. So this is a function 3x plus 1 and you need to observe the behavior of this function near 2. So if you approach towards 2 तो आपका फंक्शन जो है it actually approaches towards 7. ग्राफ इसका मैंने ड्रॉ नहीं किया बट यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन डेसिमल्स, और आप देख सकते हैं कि जब जैसे जैसे आपका x2 की तरफ अप्रोच करेगा आपका फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज जो है वो 7 की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, सिमिलरली दिस इज़ अनदर फंडामेंटल आइडेंटिटी कि अगर साइन x ओवर x है और आप लिमिट 0 पे एवेलुएट कर रहे हैं तो ओवरऑल आंसर जो है वो 1 को अप्रोच करेगा। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैंने आपको 0 पे बताया था, और यहाँ पे ये लिमिट्स जो है वो एट इन्फिनिटी है कि आप लिमिट को इन्फिनिटी पे एवेलुएट कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर जो है इट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर, तो आपका आंसर जो है ओवरऑल वो 0 को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ओवर x वाले केस में इफ़ माई x इज़ 1 तो 1 ओवर एक्स, अगर मैं y इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स करता हूँ, y ऑफ एक्स y इक्वल्स 1 ओवर एक्स है तो माई y इज़ आल्सो 1, ओके। लेकिन अब x को अगर मैं बड़ा कर दूँ तो माई y इज़ 0.5, मैं x को और बड़ा कर देता हूँ जैसे 4, तो y बिकम्स 0.25। जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है इसका आंसर जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, राइट। तो इट मीन्स के इस वाले केस में व्हेन माई x बिकम्स वेरी लार्ज 1 ओवर एक्स जो है वो इवेंचुअली 0 बन जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो लिमिट्स जो है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लिमिट्स की ही आगे फर्दर जितनी भी हमने चीज़ें स्टडी करनी है, कंटिन्यूटी या डेरिवेटिव्स और इवन इंटेग्रल्स और एसिम्प्टोट्स, ऑल ऑफ दीज आर अ काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लिमिट्स। कैसे कि लिमिट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है इट कंटेन्स लिमिट्स बिकॉज यू नीड टू एवेलुएट द लिमिट to check if a function is continuous at a particular point or not. Derivative के लिए भी you need to evaluate a limit to find the derivative of a function at a particular point. और इंटेग्रल में भी you see लिमिट इन्वॉल्व हो रही है which will study further. एंड ऑल्सो एसिम्प्टोट्स के लिए अगर आपका वेब वर्क में भी एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एसिम्प्टोट फाइंड करने थे यूजिंग एवेलुएटिंग द लिमिट्स, तो अगर आप उन लिमिट्स को चेक करेंगे तो वो एक्चुअली लिमिट्स हैं एट इन्फिनिटी। तो हमारे पास लिमिट सेट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चेक करने का मेथड होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चेक कर रहे हैं तो आप लिमिट एट इन्फिनिटी चेक करेंगे। अगर वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी पे अगर आप लिमिट चेक करें वो आपके पास कोई स्पेसिफिक नंबर आ रहा है तो यू विल हैव एन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। जैसे भी यहाँ पे मैंने ये ग्राफ ड्रा किया था, जैसे जैसे मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवा रहा था मेरा वाई जो है वो 5 पे अप्रोच कर रहा था, तो इट मीन्स वी विल हैव एन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। आगे सिमिलरली वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा अगर इन्फिनिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लिमिट चेक करें और आपके पास आंसर जो है वो प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, यानी कि इन्फिनिट लिमिट्स हों किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो उस केस में हमारे पास उस
स्पेसिफिक पॉइंट पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, और उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा दैट इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स वन साइड और दिस मे बी समथिंग लाइक दिस, will have a vertical asymptote here. Like this. Okay. So इस केस में let's say this is the particular point C. So when my x approaches towards C from left side, तो ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, और जब C को हम राइट साइड से अप्रोच करें तो ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स राइट प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी है, राइट लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है। समटाइम्स आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट्स दोनों ही सेम होती हैं, सेम इन्फिनिटी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में हम कहेंगे इस फंक्शन की लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है या लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है। और इवन क्लास में आपके इंस्ट्रक्टर्स ने वर्ड यूज़ किया है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ रियल नंबर, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर वो कोई पर्टिकुलर रियल नंबर हो, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट से वो पर्टिकुलर किसी रियल नंबर पे अप्रोच कर रहे हो तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इन केस अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइड द रियल नंबर, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए इंस्ट्रक्टर ने वर्ड यूज़ कर दिया था कि अगर इन्फिनिटी भी लिमिट आ रही है तो वो इंस्ट्रक्टर कह रहे थे डज नॉट एग्जिस्ट। तो इवन इफ़ यू राइट इन्फिनिटी या यू राइट डज नॉट एग्जिस्ट तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट समझा जाएगा। बट डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हुए आपको इन्फिनिटी लिख के डज नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा, तो इन दैट वे इट विल मेक सम सेंस। okay then we have some rules about limit laws. okay sorry so जितना भी मैं अभी लिमिट्स के बारे में पढ़ाऊँगा या कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ाऊँगा, सो आई सपोज के यू गाइज हैव द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस एंड इट्स डोमेन्स, यानी कि उसके डोमेन के बारे में आपको नॉलेज होगा, अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या होती है। ओके, so this is something that you need to know. This is a kind of prereq for this tutorial or even for your course as well. okay, so then we have some laws के लिमिट्स जो है अगर दो फंक्शंस f एंड g दो फंक्शंस हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उनके एडिशन पे अगर आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों पे अलग अलग। इवन एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों पे अलग अलग, और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ आप फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट कर देंगे और बाद में आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। और इवन योर दोनों फंक्शन जो है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में भी लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और डिवीजन वाले केस में अगर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन यानी कि नीचे वाले फंक्शन की जो लिमिट है वो ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं है तो उस केस में डिवीजन वाले केस में भी आपकी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि अगर लिमिट इसकी ज़ीरो होगी तो दिस थिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, वो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम फॉर द सेफ साइड हम उसको कह देते हैं कि द लिमिट जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सो लिमिट वाले केस में डिवीजन और प्रोडक्ट वाले केस में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट यू हैव टू टेक केयर कि डेरिवेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के लिए यू आर गिवन विद अ प्रोडक्ट रूल, तो आप अगर प्रोडक्ट किसी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उनका डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आप उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट वाले केस में आप बस आंखें बंद करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट एवेलुएट करके, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रोडक्ट पे और डिवीजन पे, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। देन वी हैव अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है या कोई रैशनल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो इस फॉर्म के, यानी कि ए एक्स एन प्लस ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यानी कि कोई nth डिग्री की पॉलिनोमियल इस फॉर्म में अगर लिखी हो तो ये पॉलिनोमियल जो है इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, तो इसकी डोमेन में कोई गैप्स नहीं होते, कोई ब्रेक्स नहीं होते, तो सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आते हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपने किसी पॉलिनोमियल की लिमिट एवेलुएट करनी है तो आप जस्ट उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप उस फंक्शन उस पॉइंट को अगर इसको मैं पी ऑफ एक्स कह देता हूँ, तो अगर इसकी पी ऑफ एक्स की आपने लिमिट फाइंड करनी है एट ए, तो आप बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की जगह पे ए, जो आंसर आएगा वो उसकी लिमिट होगी। सिमिलरली अगर आपके पास रैशनल फंक्शन है, इफ़ यू हैव अ रैशनल फंक्शन
और रैशनल फंक्शन हमारे पास इस तरह का होता है पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक पोलिनोमियल ऊपर और एक पोलिनोमियल नीचे। तो रैशनल फंक्शन इस तरह का फंक्शन, अगर उस केस में आपके पास जो ए है, इफ़ दिस लाइज इनसाइड द डोमेन, यानी कि ए कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा, या अगर रेडिकल में आ रहे हैं तो रेडिकल के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं है पी हुई, तो डोमेन में होने का मतलब ये। तो अगर जिस पॉइंट पे आप लिमिट एवेलुएट कर रहे हैं वो आपके रैशनल फंक्शन के डोमेन में है, तो आप उस केस में भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आप अपना आंसर निकाल लेंगे, तो लिमिट आपकी वहाँ से डायरेक्ट एवेलुएट हो जाएगी। ओके, लास्टली हमारे पास इसमें है स्क्वीज थ्योरम। ओके, लिमिट एवेलुएट करने के लिए वी हैव फ्यू मेथड्स जो हमने पहले ट्यूटोरियल में किए थे। अगर आप उसका PDF डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स थे। एक तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आप लिमिट्स एवेलुएट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो सेकेंडली था न्यूमेरिकली, अगर आप एवेलुएट करते हैं, न्यूमेरिकली अगर आप लिमिट एवेलुएट करते हैं तो आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कि आप अगर आपका फंक्शन जो है, अगर जिस पॉइंट पे आप लिमिट एवेलुएट कर रहे हैं वो आपके डोमेन में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा है पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन वाला। सेकेंडली उसमें था फैक्टराइजेशन, कि आप क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे आप लिमिट एवेलुएट कर रहे हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, और लिमिट एवेलुएट कर रहे हैं एट एक्स अप्रोचेस 3। अब जब आप इसमें 3 पुट करेंगे यू विल हैव 0 ओवर 0 फॉर्म, समथिंग डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0, तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम समहाउ वो वाला फैक्टर, जैसे अब ये वाला फैक्टर है जो हमें प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, यानी कि इस फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो हमारा मकसद क्या होगा कि हम सम हाउ विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस फैक्टर, यानी कि ऊपर हम कुछ तरह का फैक्टराइजेशन ट्राई करके ऊपर नीचे वो फैक्टर कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, ऊपर वाला हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो विल हैव एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, तो यू कैन कैंसिल दिस आउट, एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3। अब बाकी आपके पास बच जाएगा सिंपल एक्स प्लस 3। अब इसमें यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, तो आपके पास 3 + 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो इसी के हमने फैक्टराइज करके वो वाला फैक्टर एलिमिनेट कर दिया जो प्रॉब्लमेटिक था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते। ओके, तो एवेलुएशन ऑफ लिमिट में हमारा हमेशा यही टास्क होगा, वी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर विच इज़ कॉजिंग ट्रबल मीन्स कि वो वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, तो उस वाले केस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड सम मेथड जिससे वी विल बी एबल टू एलिमिनेट। तो एक मेथड फैक्टराइजेशन था, दूसरा हमारे पास है कॉन्जुगेशन। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्जुगेशन का भी क्वेश्चन आ जाएगा, फैक्टराइजेशन का मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन का सिंपल है, आप उसमें अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा या आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो यू विल जस्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और फाइंड द लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से आपका फंक्शन समथिंग ओवर 0 या 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है, तो उस केस में आपको इधर यू हैव टू डू फैक्टराइजेशन या ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय कॉन्जुगेशन। बाय कॉन्जुगेशन आई मीन्स कि आपके पास कोई यानी कि ऐसा ऊपर एक्सप्रेशन है, लेट्स से एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, ठीक है। अब इस केस में आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ओके ओके, सो कॉन्जुगेशन से आई मीन कि ये मैंने क्वेश्चन फिर से बनाया है, और अगर क्वेश्चन यूजुअली आपको आएगा तो ऐसे ही आएगा कि आप कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर एक ऐसा फैक्टर बन जाएगा जो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो मेन हमारा मकसद यही है कि हमें समहाउ इस फैक्टर को कैंसिल आउट करना है। ओके, कॉन्जुगेशन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेशन है आपके पास इसका। ओके, कॉन्जुगेशन से मेरा मतलब है कि आपके पास एक फैक्टर होगा जिसको आप ए कह देंगे, दूसरा फैक्टर होगा जिसको आप बी कह देंगे। तो असल में आपने फार्मूला कंप्लीट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपके पास ए प्लस बी गिवन है, तो आपने ए माइनस बी अपीयर करवाना है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा ए
अगर a प्लस बी ऊपर गिवन है तो a माइनस बी आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, तो आप इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो विल हैव x प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 3 माइनस 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है तो मे बी इसमें सोल्यूशन ना आए, बट अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके इसमें आपको इसी तरह का ही ऊपर और नीचे फैक्टर दिया जाएगा जिसमें कॉन्जुगेशन अप्लाई करने से वो कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, सो ये 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, कॉन्जुगेशन। अब फिर इसके बाद आता है स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम आपको उस वक्त हेल्प करता है जब ना तो आप फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं ना ही आप कॉन्जुगेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी कुछ आपके पास अजीब किस्म के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। लेट्स से आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाय 2, या लेट्स से एक्स, कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए। अब इस वाले केस में अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं, लेट्स से आपकी लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, तो अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो यू विल हैव 5 पाई डिवाइड बाई ज़ीरो विच इज़ इन्फिनिटी। तो साइन ऑफ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई विद ज़ीरो, तो आपका आंसर जो है वो इंट्यूटिवली तो मे बी क्लियर हो जाए, बट अब डायरेक्ट इसमें आप एवेल्युएट नहीं कर सकते। तो उस केस में जो है वो स्क्वीज थ्योरम आपको हेल्प आउट करता है। स्क्वीज थ्योरम कहता क्या है कि स्क्वीज थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर आपको किसी फंक्शन जी ऑफ एक्स की लिमिट एवेल्युएट करनी है तो आप उसको डायरेक्ट एवेल्युएट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। दो फंक्शंस फाइंड करेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो अ काइंड ऑफ इज़ बीइंग स्क्वीज्ड बिटवीन दीज टू फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स और जी एच ऑफ एक्स के बीच में स्क्वीज हो रहा है। ग्राफिकली आप इसको देखें, आपका जो है वो पहला वाला ग्राफ ये ऊपर से ऊपर सारा मूव कर रहा है और दूसरा वाला ग्राफ जो है वो नीचे मूव कर रहा है। ये रेड वाले ग्राफ जो है दिस इज़ आर एक्चुअल फंक्शन जो हमें रिक्वायर्ड है, तो वो एक्चुअल जो ग्राफ है दिस वन, ये एच वाले और एफ वाले ग्राफ के बीच में है, यानी कि एफ एच जो है वो इससे ऊपर है तो इट मीन्स एच की वैल्यू बड़ी है, और एफ जो है इससे नीचे है तो इट मीन्स एफ की वैल्यूज छोटी हैं। तो एफ और एच के बीच में हमारा फंक्शन जी अगर स्क्वीज़ हो रहा हो, और इसके बाद एक चीज़ आपने दो फंक्शन फाइंड आउट कर लिए सच दैट कि आपका एफ और एच जो है वो आपके फंक्शन जी को स्क्वीज़ कर रहा है बिटवीन। और सेकेंडली, सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस थिंग, आपका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड जो है वो आपने जो आपने नए फंक्शंस ढूंढे हैं एफ और एच, उनकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो ये आपका दूसरा काम होगा स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो सेकंड थिंग क्या 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 होगी कि आपने जो नए फंक्शन फाइंड किए उनकी आपने लिमिट्स फाइंड करनी है, और लिमिट्स अगर फाइंड करें और दोनों की लिमिट इक्वल आ जाए, यानी कि एफ फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे और वो एल किसी एक नंबर पर्टिकुलर के इक्वल हो, लेट्स से एल के, और एच फंक्शन भी आपने उसकी लिमिट वैल्यूएट की और वो भी किसी पर्टिकुलर नंबर एल के ही इक्वल है, तो उस केस में आपके पास जो है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन जिसकी हमने एवेल्युएट करनी थी वो एग्जिस्ट कर जाएगी, और वो किसी पर्टिकुलर वो उसी पर्टिकुलर नंबर एल की इक्वल होगी जिसके आपकी एफ और एच की लिमिट इक्वल है। ओके, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस। ओके ओके तो ये दीज आर ऑल द स्लाइड कह लें कि कंसेप्ट्स अबाउट लिमिट्स। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट doing questions. Okay, so the first question is कि आपने लिमिट फाइंड करनी है एट -3, एंड इफ़ यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट -3, अगर मैं -3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो विल हैव 2 3 स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 प्लस 7 इंटू -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9 -9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 21 प्लस 3, इट बिकम्स 0/0। तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू डू सम सिंप्लीफिकेशन कि आप वो फैक्टर कैंसिल आउट कर सकें। और फैक्टर वो कौन सा होगा, अगर -3 पे 0 हो रहा है तो एक्स जो है वो +3 के साथ कोई फैक्टर आएगा, क्योंकि आप उसमें -3 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमें उस तरह कोई फैक्टर ढूंढ के उसको कैंसिल आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिमिट t अप्रोचेज -3। अब ऊपर आपके पास ए स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग रहा है। ओके, तो विल राइट दिस वन t -3 इंटू t +3 डिवाइडेड बाय,
अब नीचे आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक होगा तो फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा, 3 टू द 6, तो आप इसको 6+1 कर सकते हैं। आप इसको 6t+t कर सकते हैं। जब 6t+t होगा तो यहाँ से 2t कॉमन लेंगे तो यू विल हैव t+3, तो आपके पास t+3 एक फैक्टर आ जाएगा, और इधर से आपने 2t कॉमन लिए तो इधर से आप 1 कॉमन लेंगे तो 2t+1 आपके पास एक कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से फैक्टर्स बन जाएंगे। अब फैक्टर बनने के बाद यू कैन सी कि t+3 ऊपर भी आ रहा है, t+3 नीचे भी आ रहा है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया, यानी कि दिस इज़ व्हाट वी वांटेड कि हम वो वाला फैक्टर एलिमिनेट कर दें जहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जो है वो बाकी बचे हुए फैक्टर्स में t-3 डिवाइड बाई 2t+1 में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -3 divided by 2 into -3+1, which is equals to -6 divided by -3 into 2, -6 + 1 -5, तो आंसर इज बेसिकली 6/5। ओके, सिमिलरली ओके, सो हमारे पास अगेन इस क्वेश्चन में अगेन अगर आप -2 पुट करते हैं तो यू विल हैव -8 हेयर +8 हेयर, तो यू विल हैव 0 नीचे, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वी हैव टू डू सम सिंप्लीफिकेशन। तो अब यहाँ पे इफ़ यू सी कि आपके पास ये बन रहा है a³ + b³, ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे विच इज़ इक्वल्स टू एक्चुअली a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो विल अप्लाई दिस फार्मूला, लिमिट x अप्रोचेज -2, x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू x² माइनस ये वाला a और b, x और 8, x और 2 है तो वी हैव 2x + 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। ओके, तो अब अगेन हमारे पास वो फैक्टर आ गए जो कि -2 पे 0 हो रहा था, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी रिमेनिंग वाले में हम डायरेक्टली पुट कर देंगे आंसर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर विच इज़ 4, -2 इंटू -2 इज़ अगेन +4, +4 वी हैव 1/12। ओके ओके ओके, देन हमारे पास कॉन्जुगेशन वाले क्वेश्चन हैं। ओके, देयर इज दिस क्वेश्चन, इसमें अगेन अगर आप h डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते तो नीचे 0 आएगा विच इज़ अनडिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू एक्सपेंड ऊपर वाला फार्मूला विच इज़ a + b³ है, तो हम उसको एक्सपेंड करते हैं एंड विल देन ट्राई टू फाइंड आउट। आप इसको सिंपली एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास दिस थिंग बिकम्स 2³ + 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू h + 3 इंटू 2 इंटू h का स्क्वायर प्लस h का क्यूब। तो ये वाला फैक्टर जो है ये इसके इक्वल है। जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का क्यूब आपके पास असल में 8 आ रहा है, तो दिस 2 का क्यूब इज़ 8। अब ये 8 और ये 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आपके पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो आ जाएगा लिमिट h अप्रोच 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12h + 3 2 ज़ा 6h स्क्वायर प्लस h³ डिवाइड बाय h। अब ऊपर h जो है वो तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो यू कैन टेक कॉमन, तो आपके पास h लिमिट h अप्रोच 0, h कॉमन आ जाएगा 12 + 6h + h स्क्वायर रह जाएगा, नीचे h हो रहा है तो h और h कैंसिल आउट हो गए। अब आप इसमें 0 पुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। तो एट द एंड जो है वो हमारा टास्क एवेल्यूएशन ऑफ लिमिट में टास्क यही होता है कि हम वो वाले फैक्टर एलिमिनेट कर दें, वो वाला पर्टिकुलर फैक्टर जो हमारे एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन को समहाउ अनडिफाइंड कर रहा है, तो उस फैक्टर को हम समहाउ एलिमिनेट करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ अबाउट कॉन्जुगेशन वाले क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के थे, ये 2 क्वेश्चन जो हैं कॉन्जुगेशन के हैं। कॉन्जुगेशन से मेरा मतलब यही है कि अब यहाँ पे अब आप 0 पुट करें तो अनडिफाइंड, नीचे 0 हो रहा है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। लेकिन अब ऊपर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस एक फैक्टर को a कंसिडर करेंगे, इसको b करेंगे और इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे टू कंप्लीट द फार्मूला a - b इंटू a + b। तो हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट by doing limit h approaches 0,
वन प्लस एच स्क्वेयर रूट माइनस वन डिवाइड बाई एच, ये हमारे पास ऑलरेडी है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वन प्लस एच पहली टर्म एज इट इज़, और दूसरा जो है उसका साइन चेंज कर देंगे प्लस, और फिर वन एज इट इज़, और इसी से ही हम डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि हमने इक्वलिटी भी की बराबर रखनी है, तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड भी करेंगे। अब इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर दें ऐसे बराबर बराबर, क्योंकि आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वी विल हैव लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, वन प्लस एच स्क्वेयर रूट माइनस वन टाइम्स वन प्लस एच स्क्वेयर रूट प्लस वन डिवाइडेड बाई एच इंटू वन प्लस एच स्क्वेयर रूट प्लस वन। अब ऊपर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, वन प्लस एच स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर विच वॉज माई a माइनस बी का स्क्वेयर, b हमारे पास वन है उसका स्क्वेयर, नीचे वाला फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा वन प्लस एच प्लस वन, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो मेरा एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होके बन गया वन प्लस एच माइनस वन का स्क्वेयर इज़ वन डिवाइडेड बाई एच इंटू वन प्लस एच स्क्वेयर रूट प्लस वन, ओके। अब इसको फर्दर अगर आप चेक करें तो माइनस वन प्लस वन आपस में ज़ीरो हो गया, और पीछे हमारे पास रह गया एच, एच रह गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो एच और एच कैंसिल हो गए, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद बन गया लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एच प्लस वन। अब इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वन ओवर वन प्लस ज़ीरो स्क्वेयर रूट प्लस वन, सो वी गेट वन ओवर टू, वन का स्क्वेयर रूट वन होता है तो वन प्लस वन इज़ टू, सो दिस इज़ माई फाइनल लिमिट का आंसर। सिमिलरली हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है, अब यहाँ पे वन ओवर टी जो है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी वन ओवर टी है, तो दोनों में वन ओवर टी कॉमन आ रहा है तो उसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास वन ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर रूट माइनस वन बच गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वन अपॉन, ओके, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज ज़ीरो वन अपॉन टी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपको वन माइनस वन प्लस टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो अब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो आप पुट करें तो आपके पास ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो रहा है तो आप ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। कॉन्जुगेशन यहाँ पे हमारे पास है वन प्लस टी डिवाइड बाय वन प्लस टी। अब हमारे पास इस वाले केस में दिस वन इज़ कंसीडर टू बी ए, ये जो है वो बी है, तो ये ए और ये बी, पहले ए माइनस बी था और साथ में ए प्लस बी आ गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके फार्मूला कंप्लीट कर देंगे तो विल गेट आवर आंसर, ठीक है। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर नीचे जो है वो मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसको माइनस को एक्सपेंड ओपन करेंगे तो आपके पास माइनस वन और माइनस टी आ जाएगा, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास माइनस टी है तो माइनस टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऊपर साइन आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो, तो विल हैव माइनस वन ओवर टू टाइम्स वन ओवर, सॉरी माइनस वन ओवर वन, ओके। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया दैट इज़ दिस थिंग, माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वेयर रूट इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर रूट। अब आपने टी को ज़ीरो पुट कर दिया तो ये आपका वन आ जाएगा, दिस इज़ वन, दिस इज़ ऑल्सो वन, तो वन प्लस वन टू, तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस वन ओवर टू आ जाएगा। ओके, अगर किसी स्टेप पे कहीं पे कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का आप मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, देन वी हैव स्क्वीज़ थ्योरम। अब स्क्वीज़ थ्योरम वाले केस में हमें क्या करना होता है, हमें दो फंक्शंस फाइंड करने होते हैं जिसमें हमारा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो स्क्वीज़ हो रहा हो बिटवीन,
और स्क्वीज़ थ्योरम मोस्टली आपके पास आएगा जब आपके पास फंक्शंस में लिमिट्स में साइन यूज़ हो रहा हो या कॉज यूज़ हो रहा हो। उसकी वजह क्या है कि साइन और कॉज दे आर बाउंडेड फंक्शन। वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि साइन ऑफ एनी थिंग या आपके इसके एंगल में कुछ भी आप कहो तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि ये हमेशा 1 से छोटा होगा और ये ग्रेटर इक्वल्स टू होगा -1। तो ये हमेशा आपको वैल्यूज़ -1 और 1 के बीच में देता है। कॉज ऑफ कोई भी फंक्शन ये आपको हमेशा आंसर 1 और -1 के बीच में देता है। अब इस तरह के फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, जिसकी अपर और लोअर कोई लिमिट हो, यानी कि उससे वो बाहर ना निकल सके। तो इस तरह का या कहीं भी कोई भी फंक्शन आपको आ जाए जिसके बारे में आपको बताया गया हो कि वो फंक्शन जो है वो लेस इक्वल टू होगा किसी वैल्यू के ग्रेटर इक्वल टू होगा किसी और वैल्यू एम के, मतलब कोई आपको उसकी बाउंड्स दे दी गई हो। लेट्स से हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो 100 से छोटा होगा हमेशा और -50 से बड़ा होगा, या 100 से छोटा होगा और 20 से बड़ा होगा। तो मतलब बाउंड्स हम प्रोवाइड कर दें तो उस केस में भी आप स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमें लिमिट एवेलुएट हमें प्रूव करना है बेसिकली कि ये जो फंक्शन है x⁴ cos ऑफ 2/x, इसकी जो लिमिट है वो 0 है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले cos की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ओके, तो विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ cos कि cos ऑफ एनी थिंग इज़ लेसर इक्वल्स टू 1 ग्रेटर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हम एनी थिंग की बजाय हमें जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है विच इज़ 2/x, हम a को वो रिप्लेस कर देंगे। दिस इम्प्लाइज cos ऑफ 2/x इज़ लेसर इक्वल्स टू 1 ग्रेटर इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, बट हमारे फंक्शन में वी आर हैविंग दिस x⁴ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इनइक्वालिटी को हम x⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विल हैव -x⁴। अब x⁴ जो हमेशा ये पॉजिटिव होता है तो इस केस में ये इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे -x⁴ लेसर इक्वल्स टू x⁴ cos ऑफ 2/x लेसर इक्वल्स टू x⁴। अब आप देख रहे हैं कि हमें जो है वो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन सेंटर में मिल गया और वो दो फंक्शंस के बीच में स्क्वीज़ हो रहा है। तो अब इसके बाद स्क्वीज़ थ्योरम क्या कहता है कि ये हमारा फर्स्ट टास्क था जो हमने कंप्लीट कर लिए कि हमने दो फंक्शंस ढूंढ लिए। ठीक है, अब सेकंड टास्क क्या हमारा स्क्वीज़ थ्योरम कहता है कि आपने उनकी लिमिट्स फाइंड करनी है, जो दो फंक्शंस आपने ढूंढे उनकी लिमिट्स। तो मैं पहले इसकी लिमिट फाइंड करता हूँ, जिस पॉइंट पे मैंने फाइंड करनी थी वो उसी पॉइंट पे। अगर मुझे रिक्वायर्ड जो मेरा फंक्शन था उसकी लिमिट मैंने 0 पे फाइंड करनी है, तो जो मैंने दो फंक्शंस ढूंढे हैं उनकी लिमिट भी मैं 0 पे फाइंड आउट करूँगा। तो मैं इसकी लिमिट अगर 0 पे वैल्यूएट करूँ, लिमिट x अप्रोचेज 0 -x⁴ दिस इज़ 0, और इसी तरह दूसरे की भी x अप्रोचेज 0 x⁴ दिस इज़ आल्सो 0। तो दोनों फंक्शंस की लिमिट 0 आ रही है, दोनों की इक्वल है। तो स्क्वीज थ्योरम हमें ये कहता है, स्क्वीज थ्योरम सेज दैट कि जो बीच वाला फंक्शन होगा जिसकी हमने लिमिट फाइंड करनी थी उसकी लिमिट भी 0 के इक्वल होगी। दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। ओके ओके, सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको ये इनइक्वालिटी यानी कि ये दो फंक्शंस ढूंढ के दिखाऊंगा और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। नेक्स्ट आपने लिमिट खुद इसमें एवेलुएट करके साइड होंगे और आपने प्रूव कर देना है। ओके ओके, सो इस वाले केस में अगेन आई यूज़ द क्योंकि साइन फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं साइन की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ओके, सो साइन ऑफ एनीथिंग इन द मॉडुलस satisfy this +1 and greater equals to -1। ओके ओके, अगर साइन की ये प्रॉपर्टी है तो जो अगर मैं स्क्वायर कर दूं साइन का, तो साइन जो है वो नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव कर देगा, तो ये रहेगा स्टिल 1 से छोटा, बट इस वाली साइड पे ये पॉजिटिव रह जाएगा। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, तो वो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ खत्म होगी क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकता। तो जो भी टर्म्स हैं नेगेटिव वाली वो भी पॉजिटिव में हो जाएंगी। और सिमिलरली कॉस स्क्वायर भी हमारे पास 1 और 0 के बीच में वैल्यूज देता है, तो साइन स्क्वायर हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब साइन स्क्वायर हमारे पास ये आएगा साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। अब एनीथिंग है तो हम यहाँ पे एनीथिंग के लिए एनीथिंग को रिमूव करके जो हमें अपना रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, क्योंकि हमें अपना फंक्शन बनाना है, तो हम इसको वहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि ए कैन बी एनीथिंग, तो अगर हम उसको लिख दें तो हमारा जो है वो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। 0 लेसर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ 2π/x लेसर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम अपने फंक्शन को देखेंगे इसमें और क्या रिक्वायर्ड है।
तो साइन स्क्वायर ऑफ दिस थिंग हमें मिल गया, बट अब हमें इसमें 1 को ऐड करना है बिकॉज हमारे फंक्शन में 1 ऐड हो रहा है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड हम पूरी इनइक्वालिटीज़ में करेंगे, एडिंग +1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे, लेसर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2π/x लेसर इक्वल्स टू 1 + 1, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, ये 2 हो गया और ये हमारे पास 1 रह गया। तो अब हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई है, जो हमारा ये फंक्शन है दिस इज़ स्मॉलर देन 2 ग्रेटर देन 1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसके बाद देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ x²। ओके, अब ये भी हमें रिक्वायर्ड है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट अब इस x² से मल्टीप्लाई करने से पहले, सॉरी x² से मल्टीप्लाई बाय x², हमें ये चेक करना है कि x² डिफाइंड भी है या नहीं, क्योंकि x² मोस्टली सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड होता है। अगर x रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो हमारे लिए वो अनडिफाइंड है। ओके, अब यहाँ पे आप लिमिट चेक करें, हमारे पास लिमिट जो है दैट इज़ x अप्रोचेज टूवर्ड 0 फ्रॉम राइट साइड। अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो है वो x² इज़ डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड, क्योंकि हमारा x जो है पॉजिटिव है तो उसका रेडिकल डिफाइंड होगा और रेडिकल भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखनी है, जब आप किसी भी वेरिएबल वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि सिंस वो जो जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगी। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, बट वो अदर वे अराउंड हो जाएगी, आपका प्रोसेस फिर से सेम हो जाएगा। तो साइन ऑफ x, सिंस x² इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करते हैं, विल मल्टीप्लाई विद x²। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x² 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रह जाएगा, यहाँ पे x² इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल हैव साइन स्क्वायर ऑफ 2π/x एंड लास्टली 2 से भी x² मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसकी हमने लिमिट एवेलुएट करनी थी वो हमारे पास सेंटर में आ गया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक फंक्शन आ गया, राइट साइड पे हमारे पास दूसरा फंक्शन आ गया। ठीक है, तो एक हमारी पहला स्टेप जो स्क्वीज थ्योरम का है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो दो फंक्शन हमें लेफ्ट और राइट पे मिले, हमने इसकी लिमिट एवेलुएट करनी है। किस पॉइंट पे लिमिट एवेलुएट करनी है, जिस पॉइंट पे हमें हमारे ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट रिक्वायर्ड है। तो x अप्रोचेज 0+, तो आप x² की भी जब x 0 को प्लस साइड से अप्रोच कर रहे हैं उसकी लिमिट एवेलुएट करेंगे और 2√x की भी एवेलुएट करेंगे, और आप देखेंगे इन दोनों का, इसकी भी लिमिट 0 आ रही है और इसकी लिमिट भी 0 आ रही है। तो स्क्वीज थ्योरम आपको बता देगा कि ये जो सेंटर वाला है इसकी लिमिट भी 0 होगी। ओके, देन वी हैव अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें ये आ जाता है कि आपको फंक्शन गिवन हो, सम g(x) इज़ गिवन, और बता दिए कि g(x) इज़ स्क्वीज बिटवीन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन 2x और x4 - x² + 2, और आपने क्या करना है कि आपने g(x) की लिमिट फाइंड करनी है @1। तो अब इस केस में चूंकि आपको एक बाउंडेड फंक्शन गिवन है और साइडों पे दो फंक्शन गिवन है, तो आपको पहला जेन में यही कंसेप्ट आना चाहिए कि वी हैव टू अप्लाई द स्क्वीज थ्योरम, क्योंकि हमारा जो g(x) है वो स्क्वीज हो रहा है बिटवीन दो फंक्शंस। तो अब उसको अप्लाई करने के लिए हमारी वो लिमिट वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अगर हम लिमिट एवेलुएट करें जो लेफ्ट और राइट पे दो फंक्शंस हैं उनकी, तो उनकी लिमिट सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 2(x) की लिमिट एवेलुएट करें तो लिमिट x अप्रोचेज 1 ऑफ 2(x) इज इक्वल टू 2, क्योंकि पॉलिनोमियल तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली दूसरे वाली इसकी भी लिमिट अगर आप एवेलुएट करें तो आपके पास x4 - x² + 2 आ रहा है, इसकी आप लिमिट एवेलुएट करें तो 1 - 1 + 2 आ रहा है, तो ये भी 2 आ रहा है। तो यानी कि लेफ्ट वाला जो फंक्शन था 2(x) उसकी लिमिट भी 1 पे 2 है, और राइट वाला फंक्शन ये वाला x² वाला, इसकी भी लिमिट जो है वो 1 पे 2 है। तो स्क्वीज थ्योरम आपको ये बता देगा जो सेंटर वाला फंक्शन है इसकी भी लिमिट, तो स्क्वीज थ्योरम आपको ये देगा कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेज 1 g(x) इज इक्वल टू 2। ओके, देन वी हैव लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स। अच्छा, अब लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स एवेलुएट करने के लिए, यानी कि आपको लेफ्ट और राइट लिमिट्स एवेलुएट करनी है, ये आपको तब एवेलुएट करनी पड़ेंगी जब आपके पास कोई फंक्शन जो है वो पीसवाइज फंक्शन अपीयर होता है। यानी कि आपके पास पीसवाइज फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कुछ इस फॉर्म का a(x) व्हेन x इज लेस इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू a, b(x) व्हेन योर x इज greater than a, less than some particular number b,
एंड सी ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स, देर ऑल द एक्सप्रेशंस ऑफ द फंक्शंस। यानी कि इस सिंपल वर्ड्स के आपके पास इस फॉर्म में फंक्शंस डिफाइंड हो पीसेस में। ओके, तो अगर पीसेस में फंक्शन डिफाइंड होता है और उस केस में आपने लिमिट, आपको सिंपल पूछा जाए कि लिमिट एवेलुएट करें, तो आप लिमिट जो है वो लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों एवेलुएट करेंगे। ओके, तो लेफ़्ट लिमिट अगर आपने ए पे एवेलुएट करनी है तो आपका ये फंक्शन एवेलुएट होगा, और अगर आपने राइट लिमिट ए पे एवेलुएट करनी है तो ये एवेलुएट होगा। तो अगर लेफ़्ट लिमिट यानी कि इसकी लिमिट और इसकी लिमिट बराबर आ जाए तो इट मीन्स आपका फंक्शन ए पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग एवेलुएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली जब और जहाँ कहीं भी एब्सोल्यूट वैल्यू अपीयर हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, अब उसकी भी डेफिनेशन जो है वो इसी फॉर्म की है, वो भी एक पीसवाइज फंक्शन है। आपका एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होता है इटसेल्फ एक्स के, अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो एक्सप्रेशन एक्स वो पॉजिटिव है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, और उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर वो इटसेल्फ नेगेटिव है। तो ये आपकी पीसवाइज डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो अब चूँकि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अपीयर हो रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स अगर फाइंड करनी तो हम लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग एवेलुएट करेंगे। ओके, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो इस केस में इफ़ वी फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 फ्रॉम प्लस साइड, ओके, सो अगर ओके, सो आपने ये याद रखना है कि व्हेन यूर एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस मीन्स एक्स इज़ लेस देन 3। अगर एक्स लेस देन 3 है तो एक्स माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। अगर एक्स माइनस 3 लेस देन 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 वो आपके पास माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस 3 नेगेटिव है, तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह रहा है कि नेगेटिव टर्म के साथ वो माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड वैल्यूएट कर रहा हूँ ऑफ दिस फंक्शन 2x प्लस एक्स माइनस 3, तो ये आपके पास इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड 2x माइनस एक्स माइनस 3। मैंने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, तो एक्स माइनस 3 की जगह मैंने माइनस इंटू एक्स माइनस 3 लगा दिए। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो विल हैव 2 इंटू 3 माइनस 3 विच इज़ 0, तो आंसर इज़ 2 इंटू 3 इज़ 6। परफेक्ट। अगर आपने अप्रोच करना है 3 को फ्रॉम राइट साइड, अगर आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका फंक्शन आपका जो है वो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 3 होता है। अगर एक्स ग्रेटर देन 3 है तो एक्स माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 का आंसर जस्ट पॉजिटिव में वही एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम प्लस साइड से वैल्यूएट करते हैं तो आपका इस एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा प्लस ऑफ दिस थिंग। अब अगेन आप इसमें लिमिट पुट करें तो 3 माइनस 3 0, तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। अब इस केस में लेफ्ट और राइट लिमिट लकीली इक्वल है, तो आपकी लिमिट जो है इट डज एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 ऑफ माई वो फंक्शन जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसका आंसर जो है वो 6 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो 0 पे लिमिट एवेलुएट करनी है 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स मॉड। तो मैं पहले लेफ्ट लिमिट एवेलुएट करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स मॉड। ओके, अब अगर मैं लेफ़्ट से अब 0 को अप्रोच कर रहा हूँ तो जो मेरा एक्स मॉड है वो चूँकि 0 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, और अगर एक्स इज़ लेस देन 0 तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव ऑफ एक्स। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो विल हैव 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर माइनस एक्स। ये माइनस और ये माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर जो है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इस पे आपने लिमिट क्या करनी है 2 ओवर एक्स पे एवेलुएट करनी है। अब 0 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो ओवरऑल नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो आप उसमें 0 पुट करें तो आपका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि लेफ्ट लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम इन्फिनिटी आ रहा है तो वी कैन से कि लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहीं पे ही आप एंड कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपकी लिमिट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अगर राइट इवन एग्जिस्ट भी कर जाए तो ओवरऑल आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अगर आपको सेपरेटली क्वेश्चन आ जाए कि आप फाइंड आउट करें लेफ्ट लिमिट भी और सॉरी राइट लिमिट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स मॉड। अब इस केस में चूँकि हम 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं।
तो इस केस में जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर होगा वो प्लस एक्स ही रह जाएगा, 1/x माइनस 1/, तो एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म हो जाएगा और सिंपल एक्स आ जाएगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा। नेगेटिव साइन तब आता है जब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। अब यहाँ पे ये नेगेटिव क्वेश्चन में यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि हमारा एक्स जो है वो पॉजिटिव था। अब अगर हमने नेगेटिव नहीं लगाया तो 1/x माइनस 1/x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो ज़ीरो हो गए। वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम प्लस साइड ऑफ द नंबर ज़ीरो इटसेल्फ। अब जीरो एक कांस्टेंट है तो उस पर आप कोई भी लिमिट एवेलुएट करें आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो राइट लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ ज़ीरो, लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ओवरऑल जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि इस फंक्शन की लिमिट एट ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, देन फाइनली वी हैव लिमिट्स एट इन्फिनिटी। उसके बाद हमारी कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। कंटिन्यूटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट वाली थ्योरम है, तो हम उसी पे थोड़ा सा देखेंगे। बाकी कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो एवेल्युएशन ऑफ लिमिट पे ही है, तो उस पर आपको जस्ट नीड टू नो कि लिमिट एवेल्युएट कैसे करनी है। ओके, अब लिमिट्स एट इन्फिनिटी पे हम अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी पे आपके पास कोई एक्सप्रेशन अगर गिवन है रैशनल फंक्शन की फॉर्म में, अगर तो आपको सिंपल पॉलिनोमियल गिवन है तो अगर उसमें आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यू विल गेट इन्फिनिटी आंसर। तो आपका अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है और आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले अगर लिमिट आप पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे देख रहे हैं तो आपका आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे देख रहे हैं और अगर आपका पॉलिनोमियल जो है वो है ऑड तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर वो इवन है तो आपका आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है मैथमेटिकली? पॉलिनोमियल वाले केस में तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन अगर रैशनल आ जाए यानी कि ऊपर कोई पॉलिनोमियल नीचे कोई पॉलिनोमियल, तो उस केस में अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, जो आपका मैक्सिमम ऑर्डर होगा ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल का, जो भी मैक्सिमम ऑर्डर होगा, जैसे इस केस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल उसका ऑर्डर 5 है। ऑर्डर मीन्स के हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और नीचे भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5x की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स की पावर 5 को आप कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा 3 प्लस 4x स्क्वेयर, और 5 है तो 1/x 3 रह जाएगा पीछे, और माइनस 1/x 5 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हमने अगर इवन अगर नीचे पावर जो है वो कम या ज़्यादा भी होती या कम होती तो हम स्टिल x की पावर 5 ही कॉमन लेते। अगर नीचे पावर बड़ी होती, नीचे ऑर्डर बड़ा होता तो हमने वो जो बड़े वाला ऑर्डर होता है हमने उसके हिसाब से कॉमन लेना होता है। ठीक है, अब नीचे अगर हमारे पास चूँकि पावर सेम है तो हम क्या कर रहे हैं, x5 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 6 प्लस 5 1/x माइनस 2 टाइम 1/x पावर 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x पावर 5। ओके, अब इसको कॉमन ले लिए तो हमारे पास x रेज़ पावर 5 और x रेज़ पावर 5 कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब इसमें अब हम इसको इसलिए कॉमन लेते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स जिसमें x की पावर छोटी होती हैं वो सारी की सारी जीरो को अप्रोच कर जाती हैं जब भी हम x को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाते हैं। तो इसी वजह से जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो आपका ये जो फैक्टर है 1/x3 ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, 1/x5 ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, 1/x भी ज़ीरो हो जाएगा, 1/x4 भी ज़ीरो हो जाएगा, और 1/x5 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर आपके ज़ीरो हो जाएंगे, और आप अगर लिमिट एवेलुएट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है इट ओनली लेफ्ट, तो आपकी लिमिट जो है वो सिर्फ 3 डिवाइडेड बाई 6 रह जाएगी, विच इज़ एक्चुअली 1/2। तो लिमिट आपका आंसर 1/2 आ गया। ओके, अब इस चीज़ में इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी वाले केस में अगर आपके पास वो रेडिकल में क्वेश्चन आ जाए, तो रेडिकल में क्वेश्चन आने के केस में आपका, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिट इज़ 1/2। ओके, सो इन केस अगर आपने रेडिकल में एवेलुएट करनी है लिमिट, तो इसमें केस में ओके अगेन हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली एक्स स्क्वेयर है लेकिन वो अपीयर हो रहा है रेडिकल में, तो एक्स स्क्वेयर आप कॉमन लेंगे तो रेडिकल से कैंसिल आउट होकर आपके पास अगेन एक्स ही रह जाएगा। तो आपके पास क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके सो हम एक्स कॉमन लेते हैं ऊपर से, और नीचे से एक्स स्क्वेयर अगर कॉमन लें तो आपके पास एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर से आपने एक्स कॉमन लिए तो आपके पास 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स रहेगा, नीचे से आपने रेडिकल के अंदर से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो आपके पास रह जाएगा 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ओके ओके, सो एक्स स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन बाकी बच गए। अब स्क्वेयर रूट को अलग अलग कर देंगे तो विल हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी
ऊपर हमारे पास एज इट टर्म्स आ जाएंगी 2 डिवाइडेड बाई एक्स, नीचे जो है वो आपके पास एक्स स्क्वेयर रूट टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब स्क्वेयर रूट और एक्स का जो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो स्क्वेयर रूट और एक्स को जब आप सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आता है। तो मैंने स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर को कैंसिल आउट करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिख दिया। ओके, इसके बाद अब चूंकि योर एक्स इज अप्रोचेस टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, तो इस केस में अब यहाँ तक हमारा इन दोनों क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन सेम ही थे, लेकिन एक में प्लस इन्फिनिटी और एक में माइनस इन्फिनिटी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन सेम है, इसके बाद हमने एवेलुएट करना है लिमिट के लिए, लिमिट के हिसाब से। क्योंकि एक्स प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो एक्स इज़ वेरी लार्ज बट इट इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई, अब चूँकि प्लस पॉजिटिव एक्स है तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा 4 माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। और नेगेटिव इन्फिनिटी वाले केस में अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो, जो कि दूसरे वाला पार्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू 10 प्लस 2 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो हमारा एक्स नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर हो गया। अब इसमें भी कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी कैंसिल आउट हो गया, बट इसमें एक नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है, इस वाले केस में नेगेटिव साइन नहीं है। अब इसके बाद अगर आप डायरेक्ट जीरो इन्फिनिटी पुट करेंगे, ओके, सो 1 ओवर एक्स, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी को एक्स अप्रोच कर रहा है फिर भी जीरो होता है, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है फिर भी जीरो होता है। एक्स अप्रोचेज प्लस माइनस इन्फिनिटी में किसी भी को अप्रोच करे आपका 1 ओवर एक्स का आंसर जीरो होता है। 1 ओवर एक्स भी जीरो होता है, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर भी जीरो होता है, 1 ओवर एक्स क्यूब भी जीरो होता है, और 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर n कोई भी इंटीजर पावर जो है वो जीरो होती है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, इस वाले केस में ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये सारे ज़ीरो। तो हमारा जो आंसर बच गया पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले केस में वो है 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर रूट विच इज़ 2, तो हमारे पास 5 आंसर बच गया। और इस वाले केस में हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वेयर रूट विच इज़ 2, लेकिन माइनस के साइन के साथ, 10 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वेयर रूट विच इज़ 2, तो आंसर इज़ -5। तो प्लस इन्फिनिटी वाले केस में प्लस आंसर आ गया, नेगेटिव इन्फिनिटी वाले केस में नेगेटिव आंसर आ गया। ओके ओके, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि प्लस इन्फिनिटी में प्लस ही आंसर आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी में नेगेटिव भी आंसर आएगा, लेकिन डिफरेंट भी आ सकते हैं। प्लस इन्फिनिटी में नेगेटिव में भी आंसर आ सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी में प्लस में भी आंसर आ सकते हैं। ओके, बट इस वाले केस में इसको इंसिडेंस कि आपको प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो प्लस आंसर आए, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो नेगेटिव आंसर आए। बट द मेन पॉइंट इज़ कि यू शुड नो कि आप किस तरह से इसको वैल्यूएट करें। रेडिकल के अंदर में जब आप पावर को बाहर निकाल रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन अगर आप प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो वो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिट्स। उसके बाद वी हैव कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है ग्राफिकली अगर आप देखें तो कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर उसका ग्राफ जो है वो आप एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ कर सकें विदाउट लिफ्टिंग यूर पेन, यानी कि आपके ग्राफ में कोई गैप या कोई ब्रेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली आपने उसको देखना हो तो आपका फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा अगर वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? कि फर्स्ट आपका फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, सेकेंडली उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि लिमिट की जो वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली अगर आपने किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप उस पॉइंट पे उसको एवेल्युएट करेंगे, जो उसका आंसर आएगा एवेल्युएशन के बाद, उसी एवेल्युएशन के आंसर के बाद आप उस पॉइंट पे उसकी लिमिट फाइंड करेंगे, और लिमिट का आंसर और एवेल्युएशन का आंसर उस अगर सेम आ जाए अब एक्चुअल वैल्यू तो वो आपका फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ओके ओके, राइट और लेफ्ट कंटिन्यूटी को आप फिलहाल के लिए छोड़ दें। कंटिन्यूटी की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो उनका सम कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस कंटिन्यूस होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस होगी और उनकी डिवीजन कंटिन्यूस होगी अगर जी उस पॉइंट पे नॉन जीरो है तो, और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन से वो स्टिल कंटिन्यूस रहेगा। ओके ओके, कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड चेक करें। फंक्शन डिफाइंड है 3 पे, यस 3 पे फंक्शन डिफाइंड है विच इज़
6। ओके, अब इस पॉइंट की हमने 3 पे कंटिन्यूटी चेक करें तो आपके पास जो है वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपने फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस 3 2x² माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। आपने ये लिमिट एवेल्यूएट करनी है। अब इस लिमिट को एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला मेथड सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते। तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड में हम ऊपर अगर फैक्टराइज करें तो आपके पास आएगा -6 प्लस एक्स, तो 2x अगर आप कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा ओके, इसको आप लिख सकते हैं -6x प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर आप 2x कॉमन लेते हो तो आपके पास x माइनस 3 बाकी बचता है, और इधर से अगर आप 1 कॉमन लें तो 2x प्लस 1 ऊपर से आ जाएगा और x माइनस 3 आपके पास एक और आ जाएगा। नीचे आपके पास x माइनस 3 है। अब आपके पास फैक्टर आउट होने के बाद ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ अब मैं क्योंकि प्रॉब्लमेटिक फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज़ 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इज़ 7। okay, so limiting value of the function limit x approaches 3 f of x is equals to 7 while the actual value is 6. तो 7 is not equals to 6, तो आपका फंक्शन जो है it is not continuous at 3। कंटिन्यूटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को इक्वल होना चाहिए था, इस केस में इक्वल नहीं है, तो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है एट 3। ओके, सिमिलरली आपके पास ये फंक्शन है। ओके, आपने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है सच दैट कि a और b दोनों जो हैं वो कॉन्टीन्यूस हों। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीसवाइज फंक्शन में जब आप लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये ड्रॉ रियल लाइन, और इस रियल लाइन को ब्रेक करें वहाँ जहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो, सो यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए x ग्रेटर इक्वल्स टू 3। ओके, तो आपने उस फंक्शन को वहाँ पे ब्रेक करना है जहाँ पे आपका ये पीसवाइज फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो एक आपका फंक्शन 2 पे ब्रेक हो रहा है, एक आपका फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 से पीछे आपका फंक्शन ये डिफाइंड है, तो उसको यहाँ पे लिख दें x² माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। ओके, फिर 2 और 3 के बीच में आपका फंक्शन ये वाला डिफाइंड है ax² माइनस px प्लस 3, उसको यहाँ पे लिख दें स्क्वेयर माइनस px प्लस 3। अब 3 से ऑनवर्ड जो है वो आपका फंक्शन इस तरह डिफाइंड है 2x माइनस a प्लस b, 2x माइनस a प्लस b। अब जहाँ पे ब्रेक हो रहा है उन्हीं पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पे और 3 पे। ठीक है, अब कंटिन्यूटी मैंने कहा था पीसवाइज फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी आपने लेफ्ट और राइट में से चेक करनी होती है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हमने लेफ्ट राइट क्यों नहीं चेक की, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 3 पे इक्वल होने वाले केस में इसका आंसर 6 है, और 3 नॉट इक्वल का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड पे भी फंक्शन आपका यही वाला डिफाइंड है। अगर इसको मैं a ऑफ x कह दूँ इस सारे एक्सप्रेशन को, तो ये 3 से पीछे भी ये a ऑफ x ही डिफाइंड है और 3 से आगे भी ये a ऑफ x ही डिफाइंड है। तो अगर आप चाहे तो लेफ्ट लिमिट लें तो a ऑफ x ही आएगा, राइट लिमिट लें फिर भी a ऑफ x ही आएगा। तो इसलिए हमने लेफ्ट और राइट नहीं ली और हमने डायरेक्ट एवेल्यूएट कर लिया। लेकिन इस केस में हमारे एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है, तो हमें लेफ्ट एवेल्यूएट करना पड़ेगा और फिर राइट एवेल्यूएट करना पड़ेगा। सिमिलरली 3 के लिए भी लेफ्ट और राइट एवेल्यूएट करना पड़ेगा। और इसमें जब हम 2 पे लेफ्ट लिमिट एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, 2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। तो कैसे हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f ऑफ x, तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब f ऑफ x की जगह आपका आ जाएगा x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस 2। नेगेटिव फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 2 आ जाएगा, तो आपके पास x प्लस 2 आ गया आंसर। इसमें 2 पुट करें तो आपके पास 4 आंसर आ गया। तो लेफ्ट लिमिट इज़ 4 एट 2, लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। अब आप इसी की राइट लिमिट एवेल्यूएट करें, लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम राइट साइड, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 जो है हम उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं।
तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस 3। इसको आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे तो आपके पास ए एक्स स्क्वेयर का आंसर 4 आ जाएगा माइनस बी एक्स के साथ 2b प्लस 3। ओके, अब इस पॉइंट पे 2 पे फंक्शन को कंटिन्यूस होना है, हमें ए और बी फाइंड करना है जहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यूज़। तो 2 पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, ओके अगर हमने 2 को कंटिन्यूस करना है तो वी विल डू कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट लिमिट जो है वो हमारे पास 4 है, राइट लिमिट हमारे पास ये सारी चीज़ है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट शुड बी इक्वल। तो 4a माइनस 2b प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू दिस 4। और यहाँ से आप कर सकते हैं 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1, 2 कॉमन ले लें तो आपके पास कॉमन रहने ही दें तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। तो हमने 2 पे लिमिट एवेलुएट की तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली आप 3 पे लिमिट एवेलुएट करेंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। 3 पे लिमिट एवेलुएट करेंगे तो लेफ्ट लिमिट आपके पास, ओके 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन से आपके पास जो लेफ्ट लिमिट है वो इक्वल होगी। आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9a माइनस 3b प्लस 3 और राइट लिमिट आप करेंगे तो ये वाला एवेलुएट होगा। इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास राइट लिमिट शुड बी इक्वल, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास 3 इंटू 2 6 माइनस a प्लस b। तो यहाँ से 9a इधर आके प्लस हो जाएगा 10 माइनस 3b इधर आके प्लस, ये प्लस का b है तो आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 4b, ये प्लस 3 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो विल हैव 3। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई। 2 इक्वेशंस आ गई ए और बी के लिए, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करें तो आपके पास ए और बी का आंसर आ जाएगा जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यूटी हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके बाद सेकेंडली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, सो लास्ट टॉपिक हमारे इस ट्यूटोरियल का इट इज़ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट ओनली अप्लाइज ऑन कंटिन्यूस फंक्शंस। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ जो है इट इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी, ए और बी पे, यानी कि कोई ए पॉइंट है कोई बी पॉइंट पे, उस पे आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से, ठीक है। तो और सच दैट आपके पास एक नंबर एन एग्जिस्ट कर जाता है, एन सच दैट कि वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, बिटवीन एफ ऑफ ए। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि आपका जो है वो एफ ऑफ ए इज़ लेसर इक्वल्स टू दैट नंबर एन लेसर इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो अगर आपको कोई एक एन मिल जाता है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है, तो ये दो बातें अगर ट्रू हों तो फिर आपके पास देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी इन द ओपन इंटरवल ए एंड बी, यानी कि इस ए और बी के बीच में कोई सी एग्जिस्ट करेगा, ए और बी के बीच में कोई सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उस सी पे अगर आप फंक्शन को एवेलुएट करें तो आपके पास आंसर जो है ये वाला एन आ जाएगा। ओके, इंट्यूटिवली इट्स स्ट्रेट अवे कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में कोई फंक्शन पॉइंट है, तो कंटिन्यूटी की वजह से वो फंक्शन किसी न किसी सी वैल्यू के लिए ही करस्पॉन्डिंग आएगा, तो कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इसको दूसरे वे में आप इस तरह देख लें कि अगर किसी, ओके सो वी हैव एन एक्स एक्सिस, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन गई है, लेट्स से वी हैव एन एक्स एक्सिस, ओके, और मैं कोई फंक्शन ड्रॉ करता हूँ बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स जो कि यहाँ से इस तरह जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पे लेट्स से इट इज़ नेगेटिव, ओके सो एक्स एक्सिस से अगर मैं देखूँ इस ओके सो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर बी है, तो एफ ऑफ ए जो है दैट इज़ एक्स एक्सिस से नीचे तो वो नेगेटिव है, राइट, और एफ ऑफ बी जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव है। तो ज़ीरो जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आता है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज़ लेसर इक्वल्स टू ज़ीरो ग्रेटर इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ज़ीरो जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ए और बी के बीच में कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही ना करे कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव तक तो चले जाएं लेकिन हम एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करें? तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल अगर ग्राफ में कहीं पे डिसकंटिन्यू, यहाँ पे ब्रेक
और फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर दें। अगर कंटिन्यूस है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब विदाउट कंटिन्यूटी आप इस तरह से इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस किए बगैर आप विदाउट कंटिन्यूटी आप नहीं जा सकते ऊपर। अगर कंटिन्यूस है तो आप हमेशा एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। तो उसका ये मतलब होगा कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ नंबर, यानी कि कोई ना कोई जहाँ जिस जगह से आप एक्सेस को कट करेंगे वही वाला नंबर आपका एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी इनसाइड दिस ओपन इंटरवल ए एंड बी सही दैट कि आप उस सी पे फंक्शन को एवेलुएट करें तो आपका आंसर वो जीरो आ रहा है। जीरो मीन्स कि वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव है, इवन अगर आप पॉजिटिव से कहीं पे जा रहे हैं, अगर पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, यहाँ पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव है, तो उस वाले केस में भी आप कहीं ना कहीं जीरो को क्रॉस लाजमी करेंगे। तो ये चीज़ सिर्फ आपने जेहन में रखनी है, क्योंकि आपके पास रूट से क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं कि आप प्रूव करें कि पर्टिकुलर इंटरवल में कोई रूट एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे ए और बी, जिस वाले केस में इधर आपका एफ ऑफ ए नेगेटिव और एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो, या एफ ऑफ ए पॉजिटिव और एफ ऑफ बी नेगेटिव हो। तो उस वाले केस में उस ए और बी के बीच में हमारे पास रूट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ओके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन आपको ये वाला गिवन है और आपने जो है वो फाइंड आउट करना है अ नंबर सी। इस साइन सिंबल का मतलब देयर एग्जिस्ट होता है। आपने एक नंबर फाइंड करना है सी सही दैट कि सी जो है वो आपको 100 पे मैप करता है। तो हमें असल में कोई ए और बी चाहिए दो ऐसे, हमें ए और बी एक इंटरवल चाहिए ऐसा सच दैट कि एफ ऑफ ए जो है उस पर आंसर जो है वो 100 से छोटा आ जाए, 100 से छोटा आ जाए, ठीक है। और एक और आंसर हमें, एक और फंक्शन हमें चाहिए एफ ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन 100, और हमें बी पे आंसर जो है वो ग्रेटर देन 100 आ जाए। ओके, तो अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें, इफ़ वी स्टार्ट इनिशियली, तो यू कैन सी के एफ ऑफ ज़ीरो अगर आप पुट करें तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वेयर प्लस 10 इंटू साइन ज़ीरो, ज़ीरो स्क्वेयर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो इट सेल्फ जो है वो ज़ीरो होता है, तो 10 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो आ गया विच इज़ लेस देन 100। तो हमारा ए जो है वी कैन सेट इट एज ज़ीरो। अब हमें बी फाइंड आउट करना है, और बी ऐसा हो कि आप उस पर एवेलुएट करें फंक्शन को, तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 100 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक्स स्क्वेयर जब साथ में ऐड हो रहा है और 10 ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो हमें साइन की, हमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपको साइन ऑफ वो एक्स आंसर पॉजिटिव दे, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें एक्स स्क्वेयर ऐड करें तो हमारा आंसर 100 से बड़ा आ जाए। तो पहला गेस आपके पास लेट से 10 आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 पे पुट करें तो 10 का स्क्वायर इज़ 100, 100 में कोई चीज़ ऐड करें तो वो ग्रेटर देन 100 होगा ऑब्वियसली। बट उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि साइन ऑफ 10 जो है वो आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एवेलुएट करेंगे अपने कैलकुलेटर को, रेडियन में डाल के हम उसकी वैल्यू एवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आई डोंट हैव कैलकुलेटर बट लेट मी फाइंड इट। ओके, सो let me find it here if I find somehow. Okay, सॉरी ये प्लान में नहीं था कैलकुलेटर करना, तो आई हैव टू फाइंड आउट। मेरे पास साइंटिफिक, ओके, सो आई हैव कैलकुलेटर, सी, ओके, साइन ऑफ 10. Okay, but my calculator is in radian mode, is in degree mode, so I have to convert it in the radian. Okay, so sine of 10, so साइन ऑफ 10 आपको यहाँ पे नेगेटिव आंसर दे रहा है। ओके, तो अगर हम इसको एक्स स्क्वेयर तो 100 होगा, बट उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें किसी चीज़ को, और इसी को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर इज़ नेगेटिव। तो 100 में मैं -5 ऐड करूँगा तो आंसर छोटा हो जाएगा, तो हमें मुझे कुछ और नंबर ढूंढना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद 11। तो मुझे 10 से बड़ा कोई भी नंबर चाहिए जहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव आंसर दे। ओके, तो लेट मी फाइंड आउट साइन ऑफ 11, स्टिल नेगेटिव। Okay, so maybe I'll do sine of 12, still negative. Sine of 13 is positive. Okay, so sine of 13 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से तो आई हैव 4.2, और इसमें मैं अगर ऐड कर दूँ 13 का स्क्वेयर तो आई हैव 173.20। ओके, तो अब वी कैन डू इट्स के
सॉरी, ओके। सो हमने एक चीज़ फाइंड कर ली, दूसरी हमने फाइंड कर ली एफ ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 13 स्क्वेयर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 13। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा था। ओके, हमारे पास आंसर आ रहा था 173.20 विच इज़ लार्जर देन 100। हमें यही चाहिए था बेसिकली, तो वो 100 से बड़ा है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, वी हैव फाउंड b एज वेल विच इज़ इक्वल टू 13। तो और b सच दैट के ओके, सो वी फाउंड क्लोज इंटरवल 0 and 13 such that कि f of 0 is less than 100 less than f of 13. Now intermediate value theorem implies that there exists a c inside this open interval 0 and 13 such that f of c जो है वो 100 के इक्वल होगा। ओके, तो यही c की एग्जिस्टेंस हमने शो करनी थी यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो हमने शो कर दी है। देयर एग्जिस्ट नंबर c, तो हमने शो कर दी। ओके, ओके, क्वेश्चन 13। ओके, क्वेश्चन 14 पे इसको मैं लेट मी डू इट मोर स्मॉल सो दैट हम साइड पे क्वेश्चन 14 कर सकें। ओके, सो क्वेश्चन 14 हमने अभी चेक करना है, तो उसका ए पार्ट, लेट्स डू ए पार्ट। ओके, हमने बेसिकली शो करना है यूज इंटरमीडिएट थ्योरम टू फाइंड, ओके, रूट नहीं फाइंड कर सकते, टू मेक श्योर कि देयर एग्जिस्टेंस हो। ओके, सो यूज इंटरमीडिएट थ्योरम टू शो देयर एग्जिस्ट अ रूट। तो हमने एग्जिस्टेंस बतानी है रूट की, ठीक है। हम रूट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हमने एग्जिस्टेंस बतानी है। ओके, तो अब इस वाले केस में हमने रूट की एग्जिस्टेंस बतानी है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि 0 और 1 इंटरवल है, तो 0 पे या तो नेगेटिव हो और 1 पे पॉजिटिव हो, या 0 पे पॉजिटिव और 1 पे नेगेटिव हो। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन चाहिए, ये इक्वेशन है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन क्या कर देंगे, दिस माइनस दिस होल थिंग, तो वो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा, उसको हमने 0 पे मैप करवाना है। तो हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब इसको मैं इसलिए उसको माइनस कर दिया क्योंकि हम रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा। जब ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये उधर जाके ये वाली चीज़ बना देगी, तो हमारी इक्वालिटी सेटिस्फाई कर लेगी, इसलिए हमने ये फंक्शन डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, हमें 0 और 1 पे एवेलुएट करना है, तो एफ ऑफ 0 पे एवेलुएट करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब रूट इज़ 0 माइनस 1 माइनस 0 इज़ -1। और एफ ऑफ 1 पे एवेलुएट करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1 का क्यूब रूट इज़ 1 माइनस 1 माइनस 1 इज़ 0, तो आंसर इज़ +1। तो इसी 0 पे आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, 1 पे आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ओके, तो आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ 0 इज़ लेस देन 0 ग्रेटर देन एफ ऑफ 1। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ensures that there exists a number c inside the interval 0 and 1 such that f of x जो है वो उस पॉइंट c पे, यानी कि वो फंक्शन c पे 0 के इक्वल होगा। अगर वो फंक्शन c पे 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि 3 ऑफ दिस c, यानी कि अब f इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा c के साथ, तो c माइनस 1 माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो हमारे पास एक c मिल गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली बिल्कुल सेम मेथड पे आप इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेम मेथड पे आप इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।
उस केस में आप फंक्शन क्या लेंगे, आप फंक्शन सपोज करेंगे, देखिए दूसरा पार्ट आपके पास ये है, तो आपका फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप एवेलुएट करें 0 पे, एफ ऑफ 0 इज कॉज ऑफ 0 विच इज़ 1 माइनस 0, तो 1 आ गया पॉजिटिव, और अगर आप 1 पे एवेलुएट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉज ऑफ 1 माइनस 1। ओके, अब हमें कॉज ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। ओके, कॉज ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे अगेन रेडियन में रखा हुआ है मैंने कैलकुलेटर, कॉज ऑफ 1 दिस इज़ प्लस 0.54 समथिंग, और इसके बाद आई हैव टू, ओके, इसके बाद मेरे पास है कॉज ऑफ 1 माइनस 1, तो इस पर मैं माइनस 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो यू सी द आंसर इज़ नेगेटिव 0.45। ओके, 9 है तो मैं उसको 6 करके यहीं पे छोड़ देता हूँ। बेसिकली जो हमारा मकसद था वो पूरा हो चुका है कि एक साइड पे वी गेट पॉजिटिव आंसर, दूसरी साइड पे वी गेट नेगेटिव आंसर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी नीडेड। सो हमारे इंटरमीडिएट वैल्यू की वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एफ ऑफ 0, ओके, सो अब एफ ऑफ 0 पे पॉजिटिव है तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ 1 लेस और इक्वल्स टू 0 लेस, ओके, सो स्ट्रिक्टली लेस देन, एफ ऑफ 1 इज़ लेस देन 0 लेस देन एफ ऑफ 0। तो अगर ये इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्या कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल 0 and 1, जो छोटा होगा उसको पहले लिखते हैं, बड़े को बाद में लिखते हैं, 0 and 1 सच दैट एफ ऑफ सी वुड बी इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ सी में हम एक्स को सी पे रिप्लेस कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज कॉज ऑफ सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, और सी उधर चला जाएगा तो कॉज ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी। सो दिस इज़ व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, कि हमें कोई ऐसा नंबर शो करवाना था कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हमने सी एक फाइंड कर लिए, सही दैट कॉज ऑफ सी इक्वल्स टू सी है। ओके, सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे ट्यूटोरियल 2 में, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस, आप ये देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस यहाँ स्टार्ट में गिवन है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो अब इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी गिवन है। शो दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव नंबर सी सच दैट सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसका सोल्यूशन आगे गिवन है। अगेन फिर एक फंक्शन है, शो करना है कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 10 है। एक और फंक्शन है, शो करना है कि कोई सी एग्जिस्ट करता है सच दैट जी ऑफ सी इक्वल्स टू -1 है। तो मैं पहले 3 सोल्यूशन जो है वो आपको वैसे बता देता हूँ, बाकी फंक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। और ये अपलोडेड है वहाँ पे उस ड्राइव कह रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल पेज है कैलकुलस का कोर्स का, वहाँ पे मैंने ये अपलोड किए हुए हैं। ओके, सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, यूज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू शो दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव नंबर सी, सच दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं कि आप सपोज कर लें कि फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप इस वाले केस में आप सपोज कर लें कि फंक्शन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, आपको असल में ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आपको ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि एक पे फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी हो और एक पे 2 से बड़ी हो। तो मैंने एफ ऑफ 0 पे देखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, वो 2 से छोटी है। एफ ऑफ 2 पे देखा फंक्शन की वैल्यू 4 है तो वो 2 से बड़ी है। ओके, तो मेरे पास एक इंटरवल आ गया 0 2। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो हमें कहता है कि सी एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल में सच दैट कि एफ ऑफ सी जो है वो 2 के इक्वल होगा, और एफ ऑफ सी बेसिकली सी स्क्वायर है। तो मेरे पास वो फंक्शन सी स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास फंक्शन है कि एक फंक्शन फाइंड आउट करें, फंक्शन गिवन है, शो करना है कि कोई सी एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 10 है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि एक पे फंक्शन की वैल्यू 10 से छोटी है और एक पे फंक्शन की वैल्यू 10 से बड़ी है। तो 0 पे चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और 3 पे चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू 21 आ रही है। तो 0 पे फंक्शन 10 से छोटा है और 3 पे फंक्शन 10 से बड़ा है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहेगा कि हमारे पास एक नंबर सी एग्जिस्ट करता है 0 और 3 में, और रियल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन
0 और 3 में तो वो लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि सी एग्जिस्ट करता है 0 और 3 में, सही दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 10 है, और यही हमने प्रूव करना था। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेसिकली हमें एग्जिस्टेंस देता है, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता लेकिन एग्जिस्टेंस बता देता है कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो आगे भी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन गिवन है, यू कैन चेक दिस क्वेश्चन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी देख लीजिएगा। ओके ओके, सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ द कंसेप्ट्स वी कवर्ड इन दिस वीडियो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एंड ऑल्सो यू कैन ईमेल मी, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एट shuaib.khan@lums.edu.pk। तो आप मुझे इस पे ईमेल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई आल्सो ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ओके, सो हमने क्वांटिटी कवर कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेटिव कवर करूँगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में ओके, डेरिवेटिव इज़ द लेंथी टॉपिक, तो मैं कोशिश करूँगा कि डेरिवेटिव जो है वो चेन रूल तक एक वीडियो में कवर कर लूँ, और सेकंड वीडियो में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन प्लस रिलेटेड रेट्स, और एक हमारे पास टेंजेंट लाइन के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी एक आधे क्वेश्चन में उसमें डाल दूंगा। ओके, तो फर्स्ट में डेरिवेटिव आ जाएंगे, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन आ जाएगा, डेरिवेटिव के रूल्स आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, और देन उसके बाद आपके पास चेन रूल आ जाएगा। तो मैं इसके बाद ट्राई करूँगा एज सुन एज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।